answers will be given in this kind only. Let's take another example. 7 factorial into 3 factorial, right? Now there is no other way to find out except finding out the exact value and multiply them to get to the answer. I can write 7 into 6 factorial into 3 factorial. So this will become 7 into 720 into 6. That means 42 into 720. This will be my required answer. So while solving the questions or while having the calculations simpler on factorial, it is always advisable to memorize some factorials. Which are those? By default, 0 factorial will be 1. Always remember, by default, value of 0 factorial is 1. Value of 1 factorial is 1. Value of 2 factorial is 2. I generally found this thing. 1 factorial 1 hota hai, 2 factorial 2 hota hai, so students started to give the answer 3 factorial 3, 4 factorial 4. But no, 1 factorial is consists of only one number, that's why the value is 1. 2 factorial is 2 into uske niche ke sare number, 2 into 1, that is 2. That's why 1 factorial 1, 2 factorial 2 आता. But अगर मैं 3 factorial निकालने की इच्छा रखता हूँ, तो I will get 3 into 2 into 1, that will be 6. 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1, that is 24. 5 factorial will become 120 and 6 factorial can be written as 720. It is always recommended to add or to memorize all the values of factorial at least till 6. So let us revise them again. 0 factorial by default is 1. 1 factorial is 1. 2 factorial 2. 3 factorial is 6. 4 factorial 24, 5 factorial is 120 and 6 factorial will be 720. Now as I said, to find out the factorial, उस नंबर के नीचे जितने भी नंबर्स है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है. So as a rule, remember, I cannot find out the factorial of negative values. If somebody asks you to find out the value of minus 5 factorial, तो क्या निकालूंगा मैं? -5 into -4 into -3 and so on, जो कि actually possible नहीं होगा. So remember, I cannot find out the factorial of negative values. Similarly, factorial of fractions cannot be possible. I mean to say, factorial of -5 is not possible. 1/2 factorial, which is a fraction, is again not possible. So to find out the factorial of any number, number has to be a natural number. So in first part, we have discussed about factorial function, where I asked you to memorize some of the factorial values. Right students? बढ़ते आगे हम. Fundamental counting principles. These principles will help you to handle the questions of permutation and combination in some other manner. We will try to understand these principles clearly so that we can apply them in P&C as well as in probability, right? So basically there are two rules or two principles of fundamental counting. First one, as you can see on your screen, is product rule. I will explain a product rule with the help of an example. Right? Example के through हम कोई भी चीज याद रखते हैं तो उसको recall करना बहुत easy हो जाता है. So instead of giving the theory, I will try to explain the concept with the help of an example. So मान के चलते हैं मुझे A to B जाना है. Right? A to B जाने के मेरे पास 3 ways are there. A, B and C. Thereafter I want to go from B to C. Okay.
मुझे B to C भी जाना है. B to C जाने के टोटल 2 ways are there which I am counting them as 1 and 2. So my question is, in how many ways can I go from A to C via B? इस क्वेश्चन में एक चीज मैंने बहुत ही क्लियरली बताई है, यू हैव टू गो फ्रॉम A to C via B. That means there is no direct way to go from A to C. अगर आपको A to C जाना है तो आपको B होते हुए ही जाना है. In how many ways can I go from A to C via B? Now instead of using the formula, let's actually count out the ways जिसके थ्रू मैं A to C via B जा सकता हूं. यहां से अगर मैं A ले लेता हूं तो यहां से 1 और 2 के दो ऑप्शंस हैं. सो दो वे बन गए A1 एंड A2. नॉट नेसेसरीली मैं A ही लूंगा, आई कैन टेक B ऑल्सो. सो B1 B2, 2 ways are there. B1 B2 C1 C2. How many ways are there? 6 ways are there. तो दिखाई दे रहा है इस एक्टिविटी करने के 3 तरीके थे, B to C जाने के 2 तरीके थे. अगर दोनों में मल्टीप्लाई करता हूं तो आई कैन गेट द आंसर एज 6. दैट्स वेरी गुड एंड वेरी क्लियर, वेरी राइट. बट ये आया क्यों? अगर मैं A to C जाने की इच्छा रखता हूं तो उसमें 2 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. Going from A to B is one activity. Going from B to C is another activity. अगर मैं A to B नहीं करूंगा तो कभी B to C कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं B ही नहीं पहुंचा तो B से आगे C कैसे जाऊंगा, राइट? अगर मैंने A to B किया और B to C की एक्टिविटी मैंने की ही नहीं तो कहने से A to C भी मैं कभी जा नहीं सकता. So I will put it in other words. Going from A to B is one activity. Going from A to B is one activity which can be completed in 3 ways. B to C जाना एक दूसरी एक्टिविटी है which can be completed in 2 ways. Now in this particular question 2 activities are involved, and can I say both the activities are required to be happen simultaneously, right? And or in other words I can say both the activities are important, right? अगर कोई एक एक्टिविटी मिसिंग है तो शायद मेरा जॉब कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता. दूसरे तरीके में बोलूंगा A to B जाने के 3 तरीके एंड B to C जाने के 2 तरीके हैं. और whenever there is a word like and, मान लेना all the activities are important. When all the activities are important, I will use the sign multiplication. So my final answer will become 6, जो मेरे इस आंसर से मैच हो रहा है. तो what I will say, when all the activities are important, it is a case of and is always multiplication, and this particular principle or rule is known as a product rule. There can be number of questions that you can get on the product rule. It's very simple. All the activities are important and is always multiplication, right? Chalo. The second rule for you is sum rule, or you can say additive rule or addition rule. What is it? Again, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मैं कार शोरूम चले जाता हूं, where there are 15 i10 cars are there, 20 Verna cars are there, and let me assume 10 Creta cars are there. ठीक? I want to select a car. In how many ways can I select a car? I want to select one car out of 15 i10, 20 Verna and the 10 Creta cars. अगर मेरा मन i10 खरीदने का होता, so in how many ways can I pick one i10?
15 cars are there in the showroom. I can pick any one of them. So one I-10 car can be selected in 15 ways. Similarly, one Verna can be selected in 20 ways and one Creta can be selected in 10 ways. Now, selecting one I-10 out of 15 is one activity. Selecting one Verna out of 20 is second activity. Selecting one Creta car out of 10 is third activity. Now in this question, 3 activities are involved. Are all are important? All are important? No. अगर important होते तो शायद मैं 3 कार खरीद के आता. So can I say either this will happen, I mean first activity can happen or second can happen or third can happen. तीनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली नहीं हो रही है. कार एक ही खरीदना है, वो या तो I-10 होगी, या तो वेरना होगी, या तो क्रेटा होगी. मतलब या तो फर्स्ट एक्टिविटी होगी और इट कैन बी सेकेंड एक्टिविटी और इट कैन बी थर्ड एक्टिविटी. एंड व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड लाइक और, I will use the sign addition. इन सबका एडिशन कितना होगा? 20, 10, 30, 30 and 15, 45. So make it simple now. Let's revise it. When all the activities are important, it's a case of and. And is multiplication. When one of the activities is important, it's a case of or, and it's addition. Right? These principles will be valid in permutation and combination, as well as they will also be valid in probability. Very important concepts. Note them down properly so that we can apply them directly while solving the questions. Chalo, बढ़े आगे. Now let's have some practice on the multiplication rule and the sum rule or addition rule. So this is the first question for you. A man has 10 shirts, 5 jackets and 4 pairs of slacks. If an outfit consists of a shirt, jacket and a pair of slacks, how many different outfits can the man make? उसके outfit में shirt भी होना चाहिए, जैकेट भी होना चाहिए और पेयर ऑफ स्लैक भी होना चाहिए. इन हाउ मेनी वेज कैन अ शर्ट बी सिलेक्टेड? 10 में से 1, मतलब 10 तरीके. एक जैकेट सिलेक्ट करना है 5 में से, तो 5 ways will be there, and one pair of slack can be selected out of 4. This is one activity, this is another activity, this is third activity. और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एंड आ रहा है all the activities are important. ऐसा तो नहीं है शर्ट ही पहनना है, जैकेट और पेयर ऑफ स्लैक नहीं पहनना है. All are important. That's why it's a case of multiplication. You can get your answer as 200. So in 200 ways, he can have an outfit consist of 10 shirts, consist of a shirt, jacket and a pair of slack. Here we are using the multiplication rule. आगे बढ़ते हैं. These are very easy question just to get the fundamental clarity about these two principles. In an organization, there are 10 male professors and 12 female professors in a department. 10 फेल प्रोफेसर है और 12 फीमेल प्रोफेसर्स है. In how many ways can a professor be chosen from the department to represent the department in the annual presentation? I want to select a professor, right? तो एक प्रोफेसर जो सिलेक्ट होगा वो या तो मेल प्रोफेसर होगा या फिर फीमेल प्रोफेसर होगा. मेल प्रोफेसर अगर रखता हो तो दैट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10 जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. सो there are 10 ways to select a male professor, or if I want to select a female professor, that can be done in 5 ways. So this or this can happen. अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेल फीमेल दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे. मुझे दोनों सिलेक्ट नहीं करना है. I want to select just one. So this
or this? My final answer is 15. Next question for you. रमेश एक थिएटर में चले जाता है which has 6 doors and 10 windows. In how many ways can Ramesh enter the theater? It should be theater. In how many ways can Ramesh enter the theater if he may enter through a door or through a window? और दे रखा है उसको एंटर करना है, कितने वेज में एंटर कर सकता है? अगर वो विंडो और डोर दोनों में से एंट्री को कर सकता है. सो 6 doors आर देयर. अगर वो डोर से जाने की इच्छा रखता है तो दैट एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म इन 6 वेज. और अगर उसको विंडो से जाने की इच्छा है तो उसके लिए टोटल 10 ऑप्शंस आर देयर. सो फर्स्ट एक्टिविटी कैन बी डन इन 6 वेज एंड सेकेंड एक्टिविटी कैन बी डन इन 10 ways. My answer will be 16. As you can see, there is or addition आ गया. 6 plus 10, 16 is my answer. Read the second one. In how many ways can Ramesh watch the movie by entering through a window and exiting through a door? अब उसको अंदर आना है और बाहर भी जाना है. ठीक है, एंड दिख रहा है तो ज्यादा कुछ सोचने की हमको जरूरत ही नहीं है उसमें. अंदर आने के विंडो से वो एंट्री कर रहा है जिसके है 10 वेज एंड ही इज एग्जिटिंग थ्रू अ डोर जिसके है 6 वेज. सिंस बोथ द एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड टू बी हैपन, दैट्स व्हाई 10 into 6, 60 will be my answer. I hope students you are understanding the basic rules of principles of counting. Whenever there is a word like or, plus. Whenever there is a word like and, multiply. The next one for you. How many different flags having 5 blocks can be designed with 5 different colors? You can give it a try. It's very easy. कैसे देखते हैं? एक नेशनल फ्लैग डिजाइन करना है in which there are 5 blocks. Okay, 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5 blocks are there. ये 5 blocks को मुझे कलर करना है. And how many colors are possible? 5 different colors are given to me and I need different flags, right? So अगर मुझे ये कॉलम को या ये ब्लॉक को कलर करना है, so in all there will be 5 colors. मतलब 5 में से कोई एक कलर इस ब्लॉक में आ जाएगा. Am I right? अब एक कलर तो कंज्यूम हो गया, मुझे सारे कलर डिफरेंट चाहिए. एक कलर तो कंज्यूम हो गया. ये ब्लॉक अगर मुझे फिल करना है तो इसके लिए होंगे टोटल 4 ऑप्शंस. 2 कलर चले गए आउट ऑफ 5, बचे 3. इसके लिए होंगे 3 ऑप्शंस, इसके लिए होंगे 2 ऑप्शन, इसके लिए होगा बचा हुआ जो भी एक कलर होगा वो डेफिनेटली वहां लग जाएगा. फिलिंग फर्स्ट ब्लॉक इज एन एक्टिविटी which is important. यहां कलर करना सेकेंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, फोर्थ एक्टिविटी एंड फिफ्थ एक्टिविटी. सारे ही कलर, सारे ही ब्लॉक्स में कलर करना इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स ऑल आर इंपॉर्टेंट. Whenever all are important, it's a case of multiplication, that is and. Answer is 5 factorial, which is given by 120. I hope I am clear with this. A very interesting question. How many 3-digit numbers are there in which 8 appears exactly once? Total 3 digit के नंबर कितने होते हैं? We all know. The smallest 3-digit number will be 100 and the largest 3-digit number 999. दोनों को subtract करके मुझे final जो numbers मिलेंगे those will be 900. Right students?
अब ये 900 में से ऐसे कितने नंबर्स है, एज इट इज गिवन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच 8 अपीयर्स एग्जैक्टली वंस। 8 एक बार ही आना चाहिए, ऐसे कितने नंबर्स होंगे। 3 डिजिट नंबर चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 3 लाइन्स हम ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3। 3 डिजिट का नंबर, 3 लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। अब 8 मुझे एक ही बार चाहिए, तो ये 8 कहां कहां हो सकता है? वो यूनिट्स प्लेस में हो सकता है, या तो वो टेंस प्लेस पे हो सकता है, या तो वो 100 प्लेस पे हो सकता है। दैट मीन्स देयर आर 3 ऑप्शंस जहां पर 8 आ सकता है। तो मुझे, अगर मैं 8 3 अलग अलग पोजीशन पे लेता हूं, तो उससे बनने वाले नंबर्स कितने, ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, इस प्लेस पे 8 ही होना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि 8 यूनिट्स प्लेस पे है, मतलब वहां 8 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। होगा तो उसकी दूसरी केसेस हम ले रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि 8 तीनों में से एक जगह होगा, जो कि यूनिट्स प्लेस मान रहा हूं। यूनिट्स प्लेस पे 8, दैट मीन्स देयर इज 1 ऑप्शन अवेलेबल टू फिल दिस प्लेस, राइट। अब इसके बाद स्ट्रेट अवे हम आएंगे यूनिट्स प्लेस पे, सॉरी लास्ट 100 प्लेस पे। कैन आई से ये 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बिकॉज टोटल सिंगल डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 0 1 2 से लेकर 9 तक। अगर यहां 0 आ गया तो ये नंबर कभी 3 डिजिट का हो ही नहीं सकता, वो नंबर तो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। 8 तो आ चुका है ऑलरेडी यहां पर, तो ये दोनों प्लेसेस में 8 नहीं आ सकता। अगर आ गया तो 8 2 बार हो जाएगा, बट क्वेश्चन तो बोलता है कि 8 एक ही बार होना चाहिए। एम आई राइट? सो 8 यहां आ गया, दैट मीन्स यहां 0 नहीं हो सकता, यहां पर 8 नहीं हो सकता। दैट मीन्स देयर आर 8 वेज टू फिल दिस प्लेस। टोटल सिंगल डिजिट नंबर 10 होते, 0 चले गया, 8 चले गया, तो बचे 8। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, राइट। इस पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं, तो इस पोजीशन में 8 छोड़ के बाकी सब चलेगा, क्योंकि यहां 0 होने से नंबर 3 डिजिट तो रहेगा ही रहेगा। सो ये प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास है 9 ऑप्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके 3 डिजिट का नंबर बनेगा। सो माय नंबर्स विल बी 72। अगर मैं नंबर 8 यूनिट प्लेस पे है मान के चलता हूं, तो मेरे नंबर सारे टोटल 72। चलो अब हम मानते हैं कि नंबर यहां टेंस प्लेस पे है, मतलब इसके लिए फिर से एक ऑप्शन, यहां 0 नहीं आएगा, यहां 8 नहीं आएगा, मतलब फिर से 9 ऑप्शन। यहां पे 8 छोड़ के बाकी कुछ भी चलेगा, तो अगेन 9 ऑप्शंस आर देयर। सो माय आंसर विल बी अगेन 72। केस नंबर 3, यहां पर 8 चाहिए, मतलब उसका एक ही तरीका होगा। नाउ यहां जाते, राइट, यहां 8 मतलब एक ही तरीका, यहां पर क्या नहीं हो सकता, 8 छोड़ के मुझे सब चलता। सो 9 वेज आर देयर। सिमिलरली इसके लिए 9 वेज आर देयर। ये टोटल नंबर्स बनेंगे 81। सो अगर 8 यहां है तो 72 नंबर्स। सो दिस कैन हैपन, or this can happen, or this can happen. So answer will be addition of all, which is 225. So as you can see, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो प्योरली मल्टीप्लिकेशन रूल पे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो प्योरली एडिशन रूल पे थे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव यूज्ड एडिशन रूल एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक, आगे जब हम बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये समझने में आपको काफी आसानी होगी। एंड इन एग्जाम, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू कैन एक्सपेक्ट द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन सच काइंड। बढ़ते हम आगे। उसी तरह का हमें कुछ नंबर फॉर्म करना है। एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। हाउ मेनी नंबर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट्स।
मतलब मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो सबसे पहली स्टेप 4 लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 डिजिट का नंबर, 4 लाइन हमने ड्रॉ कर ली। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स। नाउ पिछले क्वेश्चन में हमको नहीं दिया था कि नंबर कौन से डिजिट से फॉर्म करना है, तो हमने जनरली मान लिया 0 to 9। बट इस क्वेश्चन में मुझे जो 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं वो स्पेसिफिकली दिए हैं 0 1 2 3। इसका मतलब इनके अलावा मैं दूसरे डिजिट यूज नहीं कर सकता। सो कम ऑन, लेट्स डू इट। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहां पे 0 छोड़ के कुछ भी होगा, मतलब 1 2 3 में से कोई एक नंबर यहां आ जाएगा। मैं बोलता हूं 2 आ गया, सो ये तो चले गया। अब नंबर्स बचे हैं 3। दैट मीन्स इस पोजीशन के लिए मेरे पास है 3 ऑप्शंस, राइट। अब 2 नंबर्स चले गए, इसके लिए है 2 ऑप्शन। 3 प्लेसेस 3 नंबर चले गए, मतलब एक ही नंबर बचा है जो कि 100% यहां आएगा, मतलब इसके लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। ऑल आर इंपॉर्टेंट केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो आंसर इज 18। इट्स अ क्वेश्चन प्योरली ऑन मल्टीप्लीकेशन रूल। लेट्स हैव अनदर वन, उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स? अगेन इन दिस क्वेश्चन digits are given, so I cannot use the digits except this which are divisible by 5 and digits are not repeated। मुझे एक 6 डिजिट का ऐसा नंबर चाहिए जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता, and that number has to be divisible by 5। You all know what is the divisibility test of 5, जो हम हमारे नंबर सिस्टम के डिस्कशन में देख चुके हैं। Any number which ends in 0 और 5 डिविजिबल बाय 5। जिस नंबर का यूनिट प्लेस 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, राइट। तो यहां 6 डिजिट्स है, तो हम 6 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। नंबर मुझे 5 से डिविजिबल चाहिए, मतलब यूनिट्स प्लेस का हिसाब सबसे पहले कर देंगे। 0 तो मुझे दिया ही नहीं है, तो मैं ले ही नहीं सकता। 5 दे रखा है, तो 5 तो यही पे आएगा, गारंटी है। सो ये प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है एंड 5 इज यूटिलाइज्ड। अब 5 और कहीं भी नहीं आएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? यस आई कैन, बिकॉज दिया है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब 5 और कहीं नहीं आएगा। नाउ हाउ मेनी डिजिट्स? 1 2 3 4 5, और उसमें 0 है नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, 4 ways, 3 ways, 2 ways, 1 ways। So multiplication will give me the final answer as 5 factorial, which is 120। 120 नंबर में ये डिजिट्स का यूज करके बना सकता हूं जिसमें नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो क्या होता? 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, 5 की डिविजिबिलिटी तो नहीं बदलेगी, मतलब इसके लिए तो एक ऑप्शन 5 का रहेगा ही रहेगा। अब जो 5 यहां आ गया है वो और कहीं भी हो सकता है, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड मैं मान के चल रहा हूं। सो देयर आर 6 ऑप्शंस फॉर दिस। 5 यहां गया, वो और कहीं भी आ सकता है, तो इसके लिए टोटल 6 नंबर है, मतलब 6 ऑप्शंस आर देयर। इसके लिए 6 ऑप्शंस होंगे, इसके लिए 6 ऑप्शंस होंगे, इसके लिए 6 ऑप्शंस होंगे, और इसके लिए भी 6 ऑप्शंस होंगे। सो माय आंसर विल बी इन सबका मल्टीप्लीकेशन। दैट इज हाउ मच? 6 raised to power 5। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। क्योंकि अगर आपका मल्टीप्लीकेशन रूल और एडिशन रूल स्ट्रांग है तो पीएनसी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
अगेन, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे वो सारे नंबर्स से रिलेटेड थे, बट दिस सेम कंसेप्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द क्वेश्चंस अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड्स दिए हैं, उनका अल्फाबेट के यूज करके हमको नए वर्ड्स अगर फॉर्म करना है तो वी कैन यूज द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग. देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट. व्हाट आई एम सेइंग, एक वर्ड मुझे दे रखा है ऑर्डिनेट. How many different words can be formed with the letters of the word ordinate? सबसे पहले हम देखेंगे ordinate में क्या कोई चीज रिपीट हो रही है? नहीं, O रिपीट नहीं हो रहा, R रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी अल्फाबेट है जो रिपीट नहीं हो रहा है. So how many alphabets? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हम 8 प्लेसेस वहां पर ड्रॉ कर लेंगे. 8 में से कोई एक अल्फाबेट यहां पर आएगा, इसके लिए है 8 ऑप्शन. एक चले गया. अब मेरे पास ओ 2 बार तो है नहीं, तो रिपीटेशन का सवाल ही नहीं. ये अल्फाबेट यूज करके ही वर्ड बनाने हैं, तो रिपीटेशन अलाउड का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 2 ओ दिए ही नहीं है, या 2 कोई भी एक अल्फाबेट 2 बार नहीं दिया है. इसके लिए टोटल हो गए 8 ऑप्शन. एक अल्फाबेट कंज्यूम हो गया, बचे 7. इसके लिए 7 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 5 4 3 2 और बचा हुआ एक यहां पर आएगा. इन सब का मल्टीप्लीकेशन में आंसर इज 8 फैक्टोरियल. राइट. अब इसको हम और सिंपल बना देते हैं. अगर अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे, जिसमें की है 7 अल्फाबेट, तो 7 अल्फाबेट के लिए 7 जगह लगेगी, तो आंसर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 7 फैक्टोरियल. 8 अल्फाबेट 8 प्लेसेस 8 फैक्टोरियल. 4 अल्फाबेट 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल. व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. अगर रिपीटेशन है तो उसके केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हियर ओनली. अगर 5 अल्फाबेट है, 5 जगह है, तो आंसर होगा 5 फैक्टोरियल. एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं. 6 लोग हैं जिनको एक क्यू में खड़ा होना है, एक लाइन में उनको खड़ा होना है. कितने वेज में खड़े हो सकते हैं? 6 पीपल, 6 प्लेसेस, आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720. 8 लोग होते, 9 लोग होते, 10 लोग होते, तो उनका फैक्टोरियल आता, लाइक 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो इसके बाद हर बार लिख के मत करिए. 8 लोगों को लाइन में खड़ा करना है, 8 फैक्टोरियल इज द आंसर. अगर आप ऐसा भी करोगे, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर, बट ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज यू हैव टू सेम योर प्रेसिस टाइम एट एवरी मोमेंट. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. हमने फैक्टोरियल फंक्शन समझ लिया, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसमें एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल समझ लिया. अब हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग परम्यूटेशन सेपरेटली एंड कॉम्बिनेशन सेपरेटली, वी विल कंपेयर देम, वी विल स्टडी देम बाय कंपैरिजन. क्योंकि मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है व्हेन टू अप्लाई परम्यूटेशन एंड व्हेन टू अप्लाई कॉम्बिनेशन. I will give you the difference between these two in very easy manner. So, we will compare permutation and we will compare combination. Let's take an example. अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए, 8 लोगों को एक लाइन में खड़ा करना है. That's a case of arrangement. Am I right? सो अगर परम्यूटेशन कहां लगाना है और कॉम्बिनेशन कहां लगाना है कंफ्यूजन होता है, तो 2 छोटे वर्ड से हम आइडेंटिफाई ये चीज कर सकते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. एक क्लास में कुछ 60 स्टूडेंट्स हैं, मुझे एक क्रिकेट टीम फॉर्म करनी है. राइट. मतलब मुझे आई नीड टू सिलेक्ट 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 60 प्लेयर्स. सो इट्स अ केस ऑफ सिलेक्शन. एम आई राइट? अगर मैं सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूं तो एक केस बनेगी, विच इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन. वेनेवर देयर इज अ वर्ड लाइक सिलेक्शन, आई एम राइटिंग इट फॉर यू. वेनेवर देयर इज अ वर्ड लाइक सिलेक्शन ओनली, इट्स अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन.
60 में से 11 बच्चों को क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन वर्ड आ रहा है, इसलिए मैं उसको बोलूंगा कॉम्बिनेशन। नाउ जो ये 11 बच्चे सिलेक्ट हुए, एज अ कैप्टन मुझे उनका बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइड करना है। बैटिंग 1 में कौन आएगा, बैटिंग 2 पे कौन आएगा, बैटिंग 3 पे कौन आएगा, 4 पे कौन आएगा और 11 पे कौन आएगा, राइट। दैट मीन्स आई एम मेकिंग अ अरेंजमेंट और फॉर्मिंग अ सीक्वेंस, क्योंकि 1 पे अगर ए आया और ए अगर 10th पे चले गया तो वो दो अलग अलग अरेंजमेंट्स होंगी। सिलेक्ट करना है, किसी भी सीक्वेंस में सिलेक्ट करूं फर्क नहीं पड़ेगा। सो ओनली सिलेक्शन इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन। सिलेक्ट करके वो चीज को मुझे अरेंज भी अगर करना है तो वो कहलाएगा परम्यूटेशन। सो अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन इज परम्यूटेशन। वेरी इजी, राइट। अगर 7 अल्फाबेट दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 अल्फाबेट में से मुझे 3 अल्फाबेट के वर्ड्स बनाने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, 7 अल्फाबेट टोटल दिए हैं, बट मुझे 7 लेटर वर्ड फॉर्म नहीं करना, मुझे 3 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है। तो भैया पहले ये 3 अल्फाबेट्स कौन से? तो पहले तो 3 अल्फाबेट 7 में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो कोई भी 3 हो सकते हैं। 7 में से 3 अल्फाबेट सबसे पहले सिलेक्ट हुए। अब सिलेक्ट होने के बाद इनको अरेंज भी करना पड़ेगा, तभी जाके मैं वर्ड्स बना पाऊंगा। सो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन। ओनली सिलेक्शन, राइट। क्रिकेट टीम बनानी है, सो आई कैन से, या एक कमिटी फॉर्म करना है बॉयज और गर्ल्स में से, तो टोटल जो कैंडिडेट है उसमें से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं। अब उनको अरेंज मुझे नहीं करना, सिर्फ सिलेक्ट करना है। एक कमिटी में 2 लोग होने चाहिए, वो 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, तो 2 लोग आउट ऑफ द लॉट सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन परम्यूटेशन, whereas order is not important in case of combination, right? मुझे 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं पहले ए को करूं, फिर बी को करूं, फिर सी को करूं, या पहले सी को करूं, फिर ए को करूं, फिर बी को करूं, क्या फर्क पड़ना है? मेरा पर्पस है 3 लोगों को सिलेक्ट करना। बट अगर 3 लोगों को सिलेक्ट करके मुझे चेयर पे बैठाना है, तो पहले चेयर पे ए बैठा, दूसरे चेयर पे बी बैठा, तीसरे चेयर पे सी बैठा, या पहले चेयर पे सी बैठा, फिर बी बैठा, फिर ए बैठा, ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट है। सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। अब मुझे पी कहां लगाना है, सी कहां लगाना है, ये तो समझ में आ गया। कुछ फॉर्मूलेज भी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। NPR. NPR represents R selected and arranged out of N. टोटल N में से R लोगों को सिलेक्ट करके अगर मुझे अरेंज करना है, द फॉर्मूला इज गिवन बाय N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे निकालना है 8p2, 8p2, what will be the formula as per this? 8 factorial, 8 minus 2, 6 factorial. फर्दर सिंप्लीफाई अगर करूं तो 8 into 7 into 6 factorial, 6 factorial cancel, my answer will become 8 into 7। इसमें एक शॉर्टकट भी निकल के आता है। 8p2 का आंसर आया 8 into 7। आप देखिए आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 के नीचे 2 वैल्यू लिख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अगर किसी ने आपको बोला 10p3 निकालिए, तो फॉर्मूला लगा के भी आंसर आएगा, या स्ट्रेट अवे बोलो आर की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर आएगा
10 into 9 into 8. That's it. So formula is there, shortcut is there. Come to combination. NCR are selected out of N. N में से अगर R लोगों को मैंने select किया तो the formula is NCR, which will be given by n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Can I compare this to formula? ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, NPR है. So मुझे रिजल्ट मिलता है NCR into R factorial is NPR, which is very much important formula. ये वैल्यू बनेगी NPR जो कि न्यूमरेटर में रहेगी, R फैक्टोरियल यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, NCR into R फैक्टोरियल इज NPR. NPR क्या था? परम्यूटेशन का फॉर्मूला था, और परम्यूटेशन में क्या है? ये है मेरा सिलेक्शन और ये है मेरा अरेंजमेंट. तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट इज नथिंग बट द परम्यूटेशन. Only selection, combination. Selection and arrangement is a case of permutation. फॉर्मूला डिस्कस कर ले, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. अगर मुझे 8C2 निकालना है, सो क्या करूं? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. इसको लिखता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मुझे आंसर मिलेगा 8 into 7 upon 2 into 1. Is that clear? 8 into 7 upon 2 into 1. अब देखिए, जब मुझे 8P2 निकालना था तो सिर्फ न्यूमरेटर में वैल्यू थे 8 into 7. जब मुझे 8C2 निकालना है तो न्यूमरेटर की तो वैल्यू है, साथ में डिनोमिनेटर भी है, तो शॉर्टकट कैसे डेवलप होगा? इट्स अगेन वेरी इजी. R की वैल्यू है 2, तो 8 के नीचे दो वैल्यू, 8 into 7, 2 है, 2 into 1 डिनोमिनेटर में. चलो, अगर मुझे 10C3 निकालना होता, अगर मुझे 10C3 निकालना होता तो मैं क्या करता? P में तो सिर्फ न्यूमरेटर लिखते हैं, R की वैल्यू 3, यहां भी R की वैल्यू 3, तो न्यूमरेटर आएगा 10 into 9 into 8 अपॉन 3 into 2 into 1. रहेगा याद? So these are some shortcuts for combination, और ये कुछ कॉम्बिनेशन है या शॉर्टकट्स है परम्यूटेशन के लिए. या तो आप फॉर्मूला यूज करके आंसर्स निकालिए, या फिर अगर आप ये शॉर्टकट याद रखेंगे तो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग एंड कैंसिलेशन यू कैन रीच टू द आंसर इन क्विक टाइम. सो ये हमारा पूरा डिस्कशन था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का. व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, permutation. Order is not important, combination. Only selection, combination. Selection भी करना है, arrangement भी करना है, it's a case of permutation. NPR का फॉर्मूला n factorial upon n minus r factorial. NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial, and this is the relation which is there between NCR and NPR. NCR को अगर r factorial से मल्टीप्लाई करोगे तो NPR मिलता. सो मैं ये बोलूंगा सिलेक्शन करने के तरीके हमेशा सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट से कम होंगे, राइट? सो दिस इज अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बढ़ते आगे, लेट्स हैव सम प्रैक्टिस ऑन दिस. श्योर. इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल स्टैंड इन अ क्यू? ये क्वेश्चन तुम पहले ही देख चुके हैं. अब इसको परम्यूटेशन से कैसे करें उसको भी देखिए. क्या करना है हमें? 8 लोगों को एक रो में या क्यू में खड़ा करना है. तो आई नो द आंसर 8 फैक्टोरियल, पर परम्यूटेशन से कैसे आएगा? 8 पीपल सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 एंड दे हैव टू बी अरेंज्ड ऑल्सो. सो आंसर आएगा 8P8. इसको सॉल्व करते हैं तो 8 into 7 into 6 ऐसा कुछ तो भी आएगा, क्योंकि R की वैल्यू 8 है. आंसर इज 8 फैक्टोरियल. अगर मैं दूसरे तरीके से इसको करना चाहूं तो ये तो डायरेक्टली मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया. परम्यूटेशन जनरली क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. तो दिस इज टाइप 1 ऑफ सॉल्विंग इट. सेकेंड टाइप, 8 लोगों को पहले सिलेक्ट किया,
8 C 8, 8 में से 8 लोगों को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, 8 C 8, एंड 8 लोगों को अरेंज करना है, 8 फैक्टोरियल, दिस विल बिकम 1, 8 फैक्टोरियल, अगेन आंसर इज 8 फैक्टोरियल. सो डायरेक्टली या तो फॉर्मूला लगाइए पी के साथ या अपना लॉजिक लगाइए, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट का. Now we are moving to some specific cases जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ शायद ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ आउट ऑफ n थिंग्स में से p आर एग्जैक्टली अलाइक ऑफ वन काइंड, q एग्जैक्टली अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड r एग्जैक्टली अलाइक ऑफ थर्ड काइंड एंड द रेस्ट आर डिफरेंट, then the number of permutations of n things taken all at a time is given by that particular formula. n लोग टोटल हैं या n things मेरे पास है, जिसमें से कुछ एटम्स एक काइंड के सेम हैं जो कि दिए है p, दूसरे काइंड के सेम है q और तीसरे काइंड के सेम है r. तो इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट जो फॉर्मूला दिया है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. आप सोच रहे होंगे ये आया कैसा, सो हम देखते हैं. अगर मेरे पास इफ आई हैव a b एंड c, अगर मेरे पास 3 अल्फाबेट है, तीनों ही अलग अलग अल्फाबेट है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 3 अलग अल्फाबेट है, तो इनसे मैं 3 लेटर वर्ड्स कितने बना सकता हूं, यू ऑल नो, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज गोइंग टू बी 6. एबीसी में कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है. अगर रिपीट हो गई तो क्या होगा, मान के चलते हैं मैं आपको अभी अल्फाबेट देता हूं ए बी बी, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं था, तो मेरा आंसर स्ट्रेट अवे आया था 3 फैक्टोरियल. एम आई राइट? कोई भी रिपीटेशन नहीं है, 3 प्लेसेस, 3 अल्फाबेट, 3 फैक्टोरियल आंसर. ए बी बी में बी रिपीट हो रहा है, राइट? तो मैं एक्चुअली आपके लिए वर्ड्स लिखता हूं कि क्या बनेंगे. पहला वर्ड बनेगा ए बी बी, दूसरा बनेगा बी ए बी और तीसरा बनेगा बी बी ए. ये 3 के अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं है. जब कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा था सो उसके 6 तरीके थे. जैसे ही एक अल्फाबेट रिपीट हो गया उसके टोटल बनने वाले अगर आप वर्ड्स देखेंगे वो सीधे आधे हो गए. इसके पीछे रीजन ये था, टोटल अल्फाबेट्स वेयर 3, इसलिए 3 फैक्टोरियल. कितने अल्फाबेट है जो रिपीट हो रहे हैं और कितने बार हो रहे हैं, एज आई कैन सी ए इज नॉट रिपीटिंग बट बी इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. क्योंकि बी दो बार रिपीट हो रहा है, मैं उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखूंगा एज पर दिस फॉर्मूला. सो माय आंसर विल बी स्ट्रेट अवे 3, जो कि मेरा इससे मैच हो रहा है. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला व्हेन देयर इज अ केस ऑफ रिपीटेशन, एक वर्ड में कुछ अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं और उनमें से हमको सारे ही अल्फाबेट लेने हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेट्स हैव वन क्वेश्चन ऑन दिस. Find the number of permutations of the letters of the word assassination. There is a word given assassination. इससे हम कितने अलग अलग words form कर सकते हैं. Use the formula directly. How many alphabets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So numerator will be 13 factorial upon क्या क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है 1 2 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल. एंड एस इज रिपीटिंग 1 2 3 4, सो इनटू 4 फैक्टोरियल. एंड और कुछ रिपीट हो रहा है, ए हो गया, एस हो गया. आई इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, आई के बाद एन भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, राइट? एन रिपीट हो गया 2 टाइम्स, आई हो गया, ए भी हो गया, टी रिपीट नहीं हो रहा, आई रिपीट नहीं हो रहा. सो दिस इज माय
answer. There is no need to simplify it further. You will get the direct answer in this format only. Right? बढ़ते आगे. केस नंबर 2, सर्क्यूलर परम्यूटेशन. अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो या तो वर्टिकल था या फिर हम क्यू में अरेंज करने की बात कर रहे थे. राइट? सो देयर इज सम डिफरेंस इफ आई वांट टू अरेंज समथिंग इन सर्कल. सर्कल और लीनियर अरेंजमेंट में, सर्क्यूलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? एक छोटा सा डिफरेंस होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू अ एग्जांपल. जब मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करता हूं तो शायद मैं 1 2 3 4 ऐसे लोगों को अरेंज करने की बात कर रहा हूं. 1 2 3 4 ये लीनियर अरेंजमेंट है. लीनियर अरेंजमेंट में आई नो द स्टार्टिंग पॉइंट, आई नो द एंडिंग पॉइंट. राइट? तो मैं लेफ्ट टू राइट भी अरेंज करा सकता हूं या राइट टू लेफ्ट भी अरेंज करा सकता हूं. बट इन केस ऑफ अ सर्कल, do you know the starting point? No, there is no starting point. In linear arrangement, you know the starting point, you know the ending point. That means I have two distinct points to entry. But in a circle, we don't know the starting point. So first we have to create the starting point, and then accordingly we have to arrange the remaining things. So in case of circular arrangement, number of circular arrangement of n different things taken all at a time is given by n minus 1 factorial. n minus 1 factorial क्यों होगा? अगर मुझे 7 लोगों को एक क्यू में खड़ा करना है तो आंसर होगा 7 फैक्टोरियल, जो अभी तक हमने डिस्कस किया. बट अगर मुझे 7 लोगों को एक सर्क्यूलर टेबल में अरेंज करना है तो आंसर 7 फैक्टोरियल नहीं होगा. my आंसर विल बी 7 minus 1, दैट इज 6 फैक्टोरियल. ये एक कम क्यों हो गया? जस्ट टू क्रिएट अ स्टार्टिंग पॉइंट. सर्कल में एवरी पॉइंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एवरी पॉइंट इज अ एंडिंग पॉइंट. तो यहां मैं कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करूंगा तो एक आदमी को एक चेयर पे मैंने बैठा दिया तो बचे कितने लोग? 6 लोग, 6 चेयर. दैट कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल. सो मेक इट सिंपल. अगर 6 पीपल आर देयर, लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज करना है तो आंसर इज स्ट्रेट अवे 6 फैक्टोरियल. अगर 6 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है तो आंसर इज 6 minus 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल. जस्ट टू क्रिएट अ स्टार्टिंग पॉइंट. एक नंबर कम हो जाता है या एक आदमी को मैं अरेंज कर देता हूं और बाकी लोगों को बचे हुए वेज में मैं अरेंज कर लूंगा. राइट? सो आई कैन से देयर इज ओनली वन एंट्री पॉइंट इन circular arrangement, whereas there are 2 entry points in linear arrangement. Just to create the starting point, there is a concept of circular permutation. 7 लोगों को अरेंज करना है, लीनियर में 7 फैक्टोरियल, सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना है 7 minus 1, that is 6 factorial. Let's have a question on this. In how many ways can 9 Indians sit down at a round table? 9 लोगों को राउंड टेबल पे अरेंज करना है. 9 minus 1, 8 factorial will be my direct answer. ठीक? The next one, very important again. In a case of necklace or garland, total number of arrangement of n bits forming a necklace is given by n minus 1 factorial divided by 2. People को टेबल पे अरेंज करना है, ways are n minus 1 factorial. नेकलेस या गार्लैंड की अगर मैं बात करता हूं उसमें टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस होंगे n minus 1 फैक्टोरियल टोटल डिवाइडेड बाय 2. व्हाई दिस सो? मैं एक नेकलेस होल्ड कर रहा हूं जिसमें A, B, C, D इस तरह के 4 बीट्स है जो कि डिफरेंट है. मैं जो अरेंजमेंट मेरे साइड से देख रहा हूं वो सर्कुलर क्लॉकवाइज में देख रहा हूं A, B, C, D. उसी अरेंजमेंट को आगे जो बंदा बैठा है
उस अरेंजमेंट को, उसके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगी। बट क्या ये दो अरेंजमेंट अलग अलग अरेंजमेंट है? नहीं। जस्ट टू नलीफाई इट आई विल डिवाइड इट बाय 2 सो दैट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, जिसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया, वो नलीफाई हो जाएगा एंड आई कैन गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन व्हेन इट इज द केस ऑफ नेकलेस और गारलैंड। राइट? टिपिकल केसेस याद रखिए। इन केसेस ऑफ नेकलेस एंड गारलैंड इट इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। आदमी को टेबल पे अरेंज करना है, वो होगा n-1 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। गारलैंड 10 डिफरेंट फ्लावर्स का कितनी वेज में बना सकते हो? 10-1 इज 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इज माय आंसर। ठीक है? नौ इंडियंस को टेबल में बैठाना है, 8 फैक्टोरियल वाज द आंसर। 10 फ्लावर्स को अरेंज करना है, 10-1 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। इतने वेज में नेकलेस में फॉर्म कर सकता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सर्क्यूलर परम्यूटेशन। आगे बढ़ते हैं विद द अनदर टाइप। अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, आई शुड टेल दिस। Total number of combinations of n dissimilar things taken some or all at a time is given by 2 raised to power n-1. Formula is there. ये फॉर्मूला आया कैसा? क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। श्रितेज हैज 5 फ्रेंड्स। ठीक है? इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 or more of them at a dinner party? उसके 5 फ्रेंड्स हैं, उसको एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। कितने वेज में वो डिनर पार्टी के लिए अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज टू इनवाइट 1 or more of his फ्रेंड्स। कैसे कर सकते हैं सॉल्व? पार्टी करनी है ना, अकेले तो हो नहीं पाएगी, एक को तो बुलाना ही पड़ेगा। अगर वो एक फ्रेंड को बुलाने की इच्छा रखता है तो कितने वेज में पार्टी अरेंज हो सकती है? 5 दोस्त, वो ए को बुला सकता, बी को बुला सकता है, सी को बुला सकता, डी को बुला सकता, ई को बुला सकता। तो कहना इसे, अगर वो सिर्फ एक दोस्त को बुलाना चाहता है तो उसके 5 तरीके होंगे। तो कहना इसे 5 में से एक दोस्त को सिलेक्ट करना है, जो कितने वेज में सिलेक्ट होगा? 5C1। बट क्वेश्चन में बोलता है एक या उससे ज्यादा दोस्त को वो बुला सकता है। एक दोस्त को बुलाने की इच्छा रखता है तो 5C1। अगर उसको 2 दोस्तों को बुलाना है तो, अगर 2 फ्रेंड्स को बुलाना है तो 2 फ्रेंड को बुलाने के कितने तरीके होंगे? 2 दोस्तों को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 5C2। 3 को बुलाना है तो 5C3। 4 5C4। सबको बुलाना है तो 5C5। दिस कैन हैपन और या तो एक को बुलाएगा, या तो 2 को बुलाएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो उसके सिलेक्शन करने के तरीकों की एडिशन विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। इनको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं, या मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, NC0 plus NC1, NC1 plus NC2 and so on up to NCN is directly given by 2 raised to power n-1। वही तो फॉर्मूला यहां दिया था। ये हम चाहो तो सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट प्रूवन चीज है, वो हमेशा आता है 2 raised to power n-1। तो यहां अप्लाई कर देते हैं हम लोग। This will become 2 raised to power, because the value of n is 5. 2 raised to power 5 minus 1. 2 raised to power 5 is 32. 32 minus 1, 31 will be my final answer. Clear students? This is a very typical case which is very much important. एक क्वेश्चन मैंने देखा था जहां पर दिया था पोजिशनिंग ऑफ द टीथ ऑफ द पीपल ऑफ अ विलेज। पोजिशनिंग दी थी, कम से कम लोगों का एक दांत है और मैक्सिमम 32 टीथ हो सकते हैं। राइट? उनकी पोजिशनिंग सभी लोगों की अलग अलग है। वो गांव की पॉपुलेशन निकालो।
तो बहुत ही इजी तरीके से निकल सकता है 32 पोजीशंस 2 raised to power 32 minus 1. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं वो बहुत ही इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं. नोट डाउन दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली. द नेक्स्ट वन, the number of ways in which m plus n things can be divided into two groups containing m and n things respectively is given by this formula. Again, कुछ लोग दिए हैं उनको दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये फॉर्मूला आता, बट क्या फॉर्मूला की जरूरत है या लॉजिक से कंसेप्ट से मैं कर सकता हूं? क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं. In how many ways can one can make two groups of 9 and 5 students आउट ऑफ टोटल 14 स्टूडेंट्स. दो ग्रुप बनाने, पहले ग्रुप में 9 लोग चाहिए तो कहने से पहले ग्रुप के लिए 9 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे 14 में से. कितने वेज? 14 C 9. 14 में से 9 फर्स्ट ग्रुप में चले गए, बच्चे कितने? 5. ये 5 कौन से ग्रुप में जाएंगे? 2 में. सो 5 C 5. दिस and this 5C5 is going to be 1 only. 14C9 क्या होगा? 14 factorial upon 9 factorial into 14 minus 9 5 factorial. यही तो किया. m plus n factorial. अगर ये मेरा m है, ये मेरा n है, तो ये आएगा m plus n. आ रहा है क्या मेरा सही फॉर्मूला? m plus n फैक्टोरियल मतलब 14 फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल आ गया, n फैक्टोरियल दैट मींस 5 फैक्टोरियल भी आ गया. सो इज देयर एनी नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला? नो. सिंपली मुझे ग्रुप में कितने लोग हैं वो सिलेक्ट करने के तरीके निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन एंड यू विल गेट द आंसर. आई एम गिविंग यू दिस स्पेशल केसेस जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. मेक देम सिंपलर बाय अप्लाइंग द प्रॉपर लॉजिक. राइट? वेरेवर पॉसिबल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस आई विल रिकॉल द केसेस सो दैट आप उनको प्रॉपरली अप्लाई कर पाए. एंड द लास्ट वन, there can be some other cases also. Now cases can be anything, but जो typical cases होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. एग्जाम्पल 1 लेता हूं मैं. एक क्लास में कुछ 50 स्टूडेंट्स हैं, जैसा मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था. एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, हर एक बंदा दूसरे एक बंदे से एक बार हैंडशेक करेगा. कितने हैंडशेक्स पॉसिबल होंगे? बहुत इजी है. जब जब कोई दो लोग सिलेक्ट होंगे तब तब एक हैंडशेक होगा. तो दो लोग सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 50C2 विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर. जस्ट सिलेक्ट करना है, अरेंज तो करना है नहीं, तो 50C2 इज माई आंसर. सेकेंड, मैंने आपको कुछ यहां पॉइंट्स दे दिए जो कि 15 है. ये 15 पॉइंट्स का यूज करके मुझे ट्रायंगल्स बनाने हैं. कितने ट्रायंगल्स बना सकता हूं? हमारा कॉमन लॉजिक ये बोलता एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए. तो जब जब ये 15 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट होंगे आई कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल. तो 3 पॉइंट 15 में से सिलेक्ट करने के कितने तरीके? ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आर 15C3. लाइंस कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स. लाइंस ड्रॉ करने के तरीके होंगे 15C2. एक कॉमन क्वेश्चन जो मैंने देखा था, यूजुअली देखा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, 4 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी गई और 5 आपको वर्टिकल लाइंस दे दी गई. हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स यू कैन फॉर्म? यू ऑल नो क्वाड्रिलेटरल में मुझे 2 वर्टिकल लाइन चाहिए होगी और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी. तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे एंड 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन से 4, सो 2 सिलेक्ट होंगे 4C2 वेज में एंड
instead of and the vertical lines are 5. 5 में से 2 सिलेक्ट करना है, 5C2. 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करने के तरीके, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करने के तरीके, दोनों ही सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर. राइट स्टूडेंट्स, सो अभी तक के डिस्कशन में हमने फैक्टोरियल फंक्शन देखा, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 रूल डिस्कस किए, एडिशन रूल और सम रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल. एंड इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन और इज ऑलवेज एडिशन. उसके बाद हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस डिस्कस करने की कोशिश करी. सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन परम्यूटेशन, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कॉम्बिनेशन. फिर फॉर्मूला निकाला एनपीआर का, एनसीआर का, दोनों का रिलेशन और उसके शॉर्टकट. राइट, फिर हमने टिपिकल केसेस देखे. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिवाइज ईच एंड एवरी केस वेरी केयरफुली so that while solving the question we can use them without having any mistake. Right? So अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. In how many ways can the letters of the word summer be arranged? Summer में हम देख पा रहे हैं 2 alphabets are repeating, right? So how many alphabets? 1 2 3 4 5 6. तो न्यूमरेटर तो मेरा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल स्ट्रेट अवे. एज पर द केसेस जो हमने डिस्कस करे थे, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर रिपीटिंग? m इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल इज 720, 2 फैक्टोरियल इज 2. आंसर इज ऑप्शन 2. Next one for you. A student has to answer 10 out of 12 questions in an examination such that he must choose 3 from the first 4 questions. The number of choices available to him is now 1 2 3 4 5 and so on up to 12 questions are there, right? He want to select answer 10 out of 12. So अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना होता तो 12C10 मेरा डायरेक्ट आंसर आता, बट उन्होंने वहां पे कुछ कंडीशन लगा दी. In an examination such that he must choose 3 from the first 4 questions. पहले 4 में से उसको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं. सो आंसर विल बी 4C3. पहले 4 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हो गए. अब बचे कितने क्वेश्चन? 8. 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? टोटल 10. 10 में से 3 सिलेक्ट हो गए तो बचे 7. 7 किस में से सिलेक्ट होंगे? बचे हुए 8 इसमें से. सो दिस 8C7 and this is the case of just selection. सिलेक्ट ही करना है, अरेंज तो करना है नहीं. This and this will be your final answer. 4C1 is nothing but 4C3 is nothing but 4C1. कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1. तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी. 8C7 is again 8C1. 4C1 is 4, 8C1 is 8, so answer is 32. That is option number C. Right students? Easy. Find the number of ways in which 13 different bits can be arranged to form a necklace. To form a necklace. नेकलेस फॉर्म करने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. तो यहां 13 डिफरेंट बिट्स है. 13 - 1 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2.
12 factorial into 1 by 2, that is option number C is my final answer. In how many ways can the letters of the word pencil be arranged so that P and C are next to each other? Now this is something interesting and of different type. पेंसिल में क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? नो. तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है. उसमें से P एंड C आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब P और C हमेशा साथ में होने चाहिए, राइट? सो P और C ये साथ में होने चाहिए. तो मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग लेकर दोनों को आपस में बांध देता हूं ताकि वो एक दूसरे से दूर हो ही ना. P और C साथ में चाहिए तो उसको साइड में कर दिया. अब क्या क्या बचा है? E बचा हुआ है, उसके बाद N बचा है, I बचा है और L बचा हुआ है. हमने P लिख दिया था, हमने C लिख दिया था, बचा था ENIL. P और C क्योंकि साथ में चाहिए तो उसको मैं 2 यूनिट नहीं, आई विल अज्यूम देम एज 1 यूनिट. ठीक. सो अभी टोटल डिफरेंट अल्फाबेट्स कितने हो गए? 1 2 3 4, और इसको तो मुझे एक ही मानना है, मतलब 5. 5 प्लेसेस, 5 अल्फाबेट कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज. अब जो रस्सी से 2 को बांधा उसका हिसाब कर डालते हैं. ये जो 2 साथ में है ये आपस में कितने वेज में परम्यूट कर सकते हैं? वो पीसी हो सकता है या सीपी हो सकता है, या मैं बोलूं 2 अल्फाबेट 2 प्लेसेस into 2 factorial. 5 factorial is how much? 120. 2 factorial is 2. My final answer is 240. ये 4 के बीच में कहीं तो पीसी आएगा, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है. लगेगी उनके लिए 2 जगह, क्योंकि हमको उनने कंबाइन कर दिया है तो उसको मैं 1 यूनिट मान रहा हूं. भले वो कहीं भी आएगा लेकिन आएंगे तो साथ में, बट पीसी की जगह सीपी भी हो सकता है, इसलिए उसके अलग से फैक्टोरियल निकालो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सेम फॉर्मूला. एन में से P एक टाइप के है, Q दूसरे टाइप के, R दूसरे टाइप के, तो आंसर क्या होता था? टोटल 15 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आएगा अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज ऑप्शन नंबर C. How many different 7-digit telephone numbers can be formed from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? मेरे पास टोटल जो नंबर्स दिए हैं वो सारे यूज करना है, मतलब 10 ऑप्शंस आर देयर, राइट? 10 ऑप्शंस आर देयर, सो आई विल ड्रॉ 7 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है. आई नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट 7-digit टेलीफोन नंबर्स. Different 7-digit telephone numbers I am talking about, right? So, ये पोजीशन में 0 नहीं हो सकता, तो इसके लिए हो गए टोटल 9 ऑप्शंस. Am I right? और उन्होंने डिफरेंट 7-digit टेलीफोन नंबर्स बोला हुआ है. डिफरेंट 7-digit टेलीफोन नंबर, डिजिट्स कैन बी सेम ऑल्सो. लेट्स सी क्या होगा. नाउ 6 पोजिशंस आर देयर, या 0 चल सकता, यहां पे तो कुछ भी आ सकता है 0 to 9. सो 10 ऑप्शंस आर देयर फॉर दिस पोजीशन. इसके लिए 10 ऑप्शंस, इसके लिए 10 ऑप्शन, इसके लिए 10 ऑप्शन, इसके लिए 10 ऑप्शन, इसके लिए 10 ऑप्शन. सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो मल्टीप्लीकेशन होगा. सो माय आंसर इज 9 into 10⁶. दैट इज माय ऑप्शन नंबर C. Next one. How many 3-digit numbers can be formed without using the digits? Now, they are trying to make you confused. जल्दी नंबर्स दिखे हम उनका यूज करके आंसर निकाल लेते, बट विदाउट यूजिंग दिस डिजिट्स कितने नंबर बना सकते ये पूछा जा रहा है. सो कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं? वी हैव विद 0 1, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, आई कैन यूज 4, 5 नहीं चलेगा, 6 चल सकता है, 7 नहीं चलेगा, 8, 9, 6 ये 4 ये 10 हो गया. तो मुझे कितने डिजिट का नंबर चाहिए? हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड
विदाउट यूजिंग द डिजिट्स। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहां पे 0 नहीं चलेगा, तो हाउ मेनी ऑप्शंस? 1, 2, 3, 4, 5। 5 ऑप्शंस आर देयर फॉर दिस प्लेस। उन्होंने रिपीटेशन अलाउड डिफरेंट वगैरह नहीं बोला है, तो रिपीटेशन अलाउड होगा। या तो 0 भी चल सकता है अगर मैं रिपीटेशन मानता हूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन इसके लिए होंगे, 6 ऑप्शंस इसके लिए होंगे। ऑल आर इंपॉर्टेंट। 6 6 36 इंटू 5, 30 इंटू 5 इज 150 and 6 into 5 is 30, 180. Option number A is my required answer. Seems to be easy. कोई इश्यू नहीं है। Next one. From 3 officers and 7 supervisors, in how many ways can a team of 5? Total लोग अगर मैं देखूं तो 10 है। 10 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 ही सिलेक्ट करने। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा होता 10 में से 5 सिलेक्ट करो तो आंसर होता 10 से 5, सॉल्व करके आंसर आ जाता। बट उन्होंने क्या पूछा? कैन ए टीम ऑफ 5 बी चूजन टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर? मुझे एक ऑफिसर हमेशा 5 लोगों में होना ही चाहिए दिया हुआ है। सो अ टीम ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, जिसमें से एक ऑफिसर है, तो बचे हुए 4 सुपरवाइजर होंगे, तभी जाके दोनों की एडिशन 5 होगी और एक कमिटी फॉर्म होगी। एक ऑफिसर में से ही सिलेक्ट होगा। हाउ मेनी ऑफिसर्स? 3। 3 में से एक ऑफिसर सिलेक्ट करने के 3C1 वेज। 4 सुपरवाइजर सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 7, उसके तरीके होंगे 7C4। अरेंजमेंट तो करना है नहीं, सिर्फ सिलेक्शन ही करना है। दिस एंड दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। 3C1 तो 3 होगा, इंटू 7C4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आर की वैल्यू 4 है, तो ऊपर 4 वैल्यू, नीचे 4 वैल्यू। 4 goes off, 3 2s 6 goes off, 7 5s 35, 35 into 3 105 होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। राइट? Getting the things easier for us now. The next one. How many 2 digit? 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और this is very important. कोई भी नंबर ऑड होने के लिए उसके यूनिट्स प्लेस पे ऑड नंबर होना चाहिए। 1, 3, 5, 7 या 9 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 5, 6 एंड 7। इनका यूज करके ही बनाना है, मतलब मैं अपने मन से बचे हुए डिजिट्स नहीं ले सकता। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? यहां पर इस पोजीशन पे 1 हो सकता है, इस पोजीशन पे 5 हो सकता है, इस पोजीशन पे 7 भी हो सकता है। 1, 5 और 7, तो 3 ऑप्शंस आर देयर टू फिल दिस पोजीशन। एंड क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑप्शंस। दिस एंड दिस बोथ आर इंपॉर्टेंट। आंसर इज 15, ऑप्शन नंबर B. Right? We have already covered this question. 5 फ्रेंड्स में से एक या उससे ज्यादा को इनवाइट करना है पार्टी के लिए, तो कितने वेज में पार्टी अरेंज हो सकती है? द फॉर्मूला वाज, कैन यू रिकॉल दैट? 2 raised to power n minus 1। हमारे क्वेश्चन में है n की वैल्यू 5, सो 2 raised to power 5 minus 1, 32 minus 1, 31, option number B. Is that clear? Yes. In how many ways can the letters of the word discovery be arranged so that the vowels will never be separated? हमने जो पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था पेंसिल का, जिसमें P और C साथ में होने चाहिए, वैसा ये क्वेश्चन है। यहां पर मुझे वोवेल्स वे नेवर बी सेपरेटेड, मतलब वो साथ में होने चाहिए। चलो कर लेते हैं।
How many vowels are there? I, O and E. I, O, E. ये तीन ओवेल्स को मैं साथ में स्ट्रिंग से बांध दूंगा और उसको एक यूनिट मानूंगा. फिर बचा मेरे पास D, S, C, V, R and Y. Right? How many different alphabets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको मैं मानूंगा एक, मतलब 7. तो 7 फैक्टोरियल तो ये हो गया. और जो स्ट्रिंग से एक ग्रुप में है वो आपस में भी परम्यूट करेंगे ना. हाउ मेनी वेज? 3 अल्फाबेट, 3 प्लेसेस एंड 3 फैक्टोरियल. दैट इज ऑप्शन नंबर C is the answer for our question. The next one. There are 7 pairs of socks of different size. In how many ways can you choose one for the left foot and one for the right foot such that they are not of the same pair? So that they are not of the same pair. मतलब पहली पेयर दूसरे कलर की होनी चाहिए, दूसरे साइज की होनी चाहिए रादर, और जो दूसरी पेयर सिलेक्ट होगी लेफ्ट के लिए और राइट के लिए, दो अलग अलग पेयर मुझे सिलेक्ट करनी है. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. पहली पेयर 7 में से सिलेक्ट करूंगा, 7C1 एंड अब जो दूसरी पेयर सिलेक्ट होनी है वो लेफ्ट से डिफरेंट होनी चाहिए. नॉट ऑफ द सेम पेयर दिया हुआ है, नॉट ऑफ द सेम पेयर, राइट. तो बची 6 पेयर, 6 में से एक सिलेक्ट कर लो. 6C1, 7 into 6, 42. 12th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4th, 42. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होता है. लॉजिक प्रॉपरली हिट अगर हो गया तो आंसर क्विकली आपका निकल आएगा. 7 चेयर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7. लिख लेते हैं हम लोग. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 2 women first sit on 2 chairs from those marked 1 to 3. ये 3 चेयर में से किसी 2 चेयर पर 2 विमेन्स बैठेंगी, 2 विमेन बैठेगी. एंड 3 men सिलेक्ट 3 चेयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग. रिमेनिंग मतलब 4 या 5? 5, क्योंकि ये 3 में से कोई 2 ऑक्यूपाई होने के बाद एक बचेगी और ये 4, मतलब मेन के लिए 5 चेयर का ऑप्शन होगा. Find the number of possible arrangements is again very easy. It's a question of selection and arrangement. ठीक है. 3 में से 2 चेयर पहले सिलेक्ट होगी और वो 2 चेयर पे 2 विमेन बैठेंगी. तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं 3P2 इतने वेज में विमेन अरेंज होगी. एंड हाउ मेनी चेयर्स आर लेफ्ट नाउ? 3 में से 2 चलेगी तो यहां से एक बची और ये 4, मतलब टोटल बची है 5 चेयर. और 5 चेयर पे मुझे अरेंज करना है, सिलेक्ट करके अरेंज करना है. कितने मेन? 3. इसको सॉल्व करके मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाना चाहिए. 3P2 इज 3 into 2. आर की वैल्यू 2 है तो 2 वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी. इंटू 3 है तो 5 into 4 into 3. ठीक है. 5 4 जा 20, 23 जा 60, 3 2 जा 6. My final answer is 360, which is my option number C. Right, students? I hope you are also able to solve the questions with me. Next one. Arrangement. एक word दिया है. How many new words can be arranged with the word arrangement? All ending in G. So जितने भी टोटल होंगे आखिरी का अल्फाबेट G होना चाहिए. तो G तो मैंने यूटिलाइज कर लिया, उसको बाहर कर लो. G यहां रखना है तो उसका तो एक ही तरीका होगा, हटा दो. अब कितने अल्फाबेट्स बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में आ जाएगा. अपॉन जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखिए. ए रिपीट होता है क्या?
2 बार रिपीट हो रहा है, एंड R 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड A तो हो चुका है, N रिपीट नहीं हो रहा, E रिपीट हो रहा है क्या, नहीं सॉरी, N इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, E रिपीट हो रहा है 2 बार, M रिपीट नहीं होता, T रिपीट नहीं होता, सो दिस इज माई आंसर विच इज माई ऑप्शन नंबर D। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़े आगे। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ऐसे भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। टोटल 8 men आर देयर, सिलेक्ट कितने करने हैं, सॉरी 8 men हैज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 13, तो 13 C8 एंड C8 एंड 10 विमेन में से 2 विमेन को सिलेक्ट करना है। कितने वेज होंगे, 10C2, राइट। सो 13C8 इंटू 10C2, ऑप्शन नंबर बी विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते आगे, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। How many 7 letters words can be formed from the letters of the word country beginning with C and ending with Y? तो C से स्टार्ट करना है, Y से खत्म करना है, उसको तो छोड़ दो, उसका एक ही तरीका होगा। अब बचे कितने अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट जिसमें रिपीटेशन नहीं है, पहला और आखिरी फिक्स हो गया, बचे 5 अल्फाबेट, 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल 120, ऑप्शन नंबर ए इज माई फाइनल आंसर। अगला हैंडशेक वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आफ्टर अ गेट टुगेदर एवरी पर्सन प्रेजेंट हैंडशेक विद एवरी अदर पर्सन, इफ देयर वर 91 हैंडशेक्स इन ऑल, हाउ मेनी पर्सन्स वेर प्रेजेंट इन द पार्टी? पार्टी में कितने लोग हैं जो हैंडशेक के बाद टोटल 91 हैंडशेक्स देंगे? लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर 1। अगर 14 पर्सन है तो 14C2, क्योंकि एक हैंडशेक के लिए कम से कम 2 लोग लगेंगे, ये होगा 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 7 14, 13 7 91, तो स्ट्रेट अवे माई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नो नीड टू गो अहेड, राइट। इन अ क्रिकेट चैंपियनशिप देयर वेर 120 मैचेस प्लेड, every 2 teams played 1 match with each other, the number of team participating in the championship। ये सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन से एक मैच करने के लिए 2 टीम लगेगी, ऑप्शन से ऐसी वैल्यू ढूंढो जो 120 मैच देगा। चलो ऑप्शन 1 से स्टार्ट करें। 18C2, 18 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 1, यूनिट प्लेस में 0 नहीं आता, रूल्ड आउट। 19C2, 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यूनिट प्लेस में 0 नहीं आता, रूल्ड आउट। 17 में 17 इंटू 16 आएगा, रूल्ड आउट। 16 अगर मैं करता हूं तो 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1 आएगा, 15 8 120, ऑप्शन नंबर डी इज माई रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अ विमेन वॉन्ट्स टू सिलेक्ट 3 टॉयज फॉर हिज चाइल्ड। One variety has 8 models, second 5 models, and third variety has 3 models. In how many ways can he select the 3 toys? One from each of the variety. One from each of the variety. तो पहला टॉय सिलेक्ट करने के 8 ways, and दूसरे के 5, एंड तीसरे के 3। हमने जो कार्स वाला एग्जांपल किया था वहां एक कार थी इसलिए ऐड किया था, यहां तीनों ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40, 40 इंटू 3 120, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in how many ways can 6 physics, 5 chemistry and 4 maths book be arranged if all the books of each type are to be kept together? I mean 6 फिजिक्स साथ में होने चाहिए, 5 केमिस्ट्री साथ में होने चाहिए और 4 मैथ्स साथ में होने चाहिए। तो 6 फिजिक्स का एक ग्रुप बना,
5 केमिस्ट्री का दूसरा बना, 4 मैथ्स का तीसरा ग्रुप बना। तो कहना इसे दे रहा है 3 ग्रुप्स, इसको 1 यूनिट मानूंगा, इसको 1 यूनिट मानूंगा, इसको 1 यूनिट मानूंगा, जो कि देगा 3 फैक्टोरियल। 3 यूनिट 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल। पहले ग्रुप में जो 6 फिजिक्स की बुक्स है वो आपस में कितने वेज में परम्यूट करेंगे? 6 फैक्टोरियल वेज में। दूसरे ग्रुप में 5 केमिस्ट्री की बुक है जो परमिट करेंगे 5 फैक्टोरियल वेज में, और तीसरे ग्रुप का 4 फैक्टोरियल। सॉल्व दिस, you will get the final answer as option number C. ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे। You can read the question. How many prizes? 3. कितने स्टूडेंट्स में देना है? 6. 6 C 3. Right answer 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. Answer is option number B. बढ़े आगे, चलिए फटाफट सॉल्व करिए। A class photograph has to be taken. आपने भी काफी बार लिया होगा। The front row consists of 5 girls who are sitting. Front row में 5 girls are there. 18 boys are standing behind. ये जो रो नंबर 1 है इसमें टोटल 18 boys है। The 2 corner position are reserved for the 2 tallest boy. यहां T1 आएगा, यहां T2 आएगा, या फिर यहां T2 आ सकता है, यहां T1 आ सकता है, मतलब उनके लिए पहली और आखिरी पोजीशन रिजर्व्ड है। In how many ways can the student be arranged? Very easy. 5 गर्ल्स को अरेंज करने के होंगे 5 फैक्टोरियल वेज, एंड बॉयज को अरेंज करना है पहला और आखिरी छोड़ दो, पहले कितने बच्चे कितने बॉयज बच्चे बीच में? 16. सो दे कैन बी अरेंज इन 16 फैक्टोरियल वेज। T1 और T2 जो टॉलेस्ट है वो पहले और आखिरी पोजीशन में आएगा रो नंबर 2 में, तो T1 T2 हो सकता है या T2 T1 हो सकता है, तो उसके होंगे 2 तरीके। सो सिंपली मल्टीप्लाई ऑल दिस अरेंजमेंट बाय 2. सो दिस आर द अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स एंड दिस आर द टोटल अरेंजमेंट फॉर बॉयज, विच इज द मैचिंग आंसर? 16 factorial into 2 factorial into 5 factorial is how much? 120. I am getting the answer as 240. 5 factorial is 120 into 16 factorial into 2. So what is the answer that I am getting? 16 factorial into 240, that is option number B. Yes, this is a question of circular permutation. It's a very important one. The number of ways in which 4 men and 4 women can sit at a round table if no 2 women are to sit together is given by. So एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन है no 2 women are together. कोई भी 2 विमेन साथ में नहीं होनी चाहिए। 2 विमेन साथ में नहीं होनी चाहिए, इसका हिसाब बाद में करते हैं। How many men? How many men are there? How many men are there? 4. So M1, M2, M3 and M4. 4 women, sorry, 4 men, circular arrangements, 3 factorial. 4 आदमियों को सर्कल पे बैठाना है, 3 फैक्टोरियल वेज हो गया एज पर अवर कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। एंड अभी विमेन को बैठाना है, एंड विमेन शुड नॉट सिट टुगेदर। सो विमेन यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है। सो 4 पोजीशन विमेन के लिए, 4 विमेन 4 पोजीशन, दे कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल। गलती से इसको 3 फैक्टोरियल मत लेना, क्योंकि जब 4 आदमियों को सिलेक्ट करके मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया, तो 2 बार मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट नहीं कराऊंगा। सिर्फ n-1 इसलिए होता है कि लीनियर में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सर्कुलर में नहीं होता। वो कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
The next one. In how many ways can 6 persons be seated around a circular table such that 2 particular persons are next to each other? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये दो हमेशा साथ में होने चाहिए. So, इनको मानेंगे 1 यूनिट. 1, 2, 3, 4 टोटल यूनिट हो गए 5. सर्कुलर अरेंजमेंट में 5 यूनिट को सिलेक्ट करने के तरीके होंगे 5 - 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल, और ये दो लोग आपस में परम्यूट करेंगे 2 फैक्टोरियल वेज में. 24 into 2 48 माय रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन नंबर बी. लीनियर में 5 होते तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है इसलिए मैं इसको बोलूंगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. And the last question for the day, which seems to be very easy. How many words can be formed from the letters of the word extra so that the vowels are never together? Vowels are not together, matlab they has to be always together. So, E is one vowel, A is another vowel, तो इनको एक रस्सी लेके बांध दो और बचा X, T, R. तो टोटल अल्फाबेट्स कितने हो गए? 1, 2, 3. इसको 1 यूनिट मानूंगा, मतलब टोटल हो गया 4 फैक्टोरियल. 4 अल्फाबेट्स, 4 स्पेसेस, 4 फैक्टोरियल. एंड इनको अरेंज करने के होंगे 2 तरीके, दैट इज 2 फैक्टोरियल, so that vowels are never together. So what should be the answer then? 4 factorial is 24 into 2. I am getting the answer as 48. So that vowels are never together. Okay. यहां हमने ये जो 48 निकाला है, यहां पर 2 वॉवेल साथ में है. मुझे तो वॉवेल साथ में नहीं चाहिए, तो क्या करूं? जो टोटल वेज होंगे उसमें से वॉवेल साथ होने के तरीके हटा देता हूं. चलो, कितने अल्फाबेट है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5. 5 अल्फाबेट, 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल, दैट इज गोइंग टू बी 120. तो इससे बनने वाले टोटल वर्ड्स 120 है. एक्स्ट्रा वर्ड्स से बनने वाले टोटल वर्ड्स 120 है, जो कि 5 फैक्टोरियल होता है. इनमें से 48 केसेस में ई और ए साथ में है, मतलब बचे हुए इसमें नहीं है. माय आंसर इज 120 माइनस 48, दैट इज 72. ऑप्शन नंबर डी विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर. टोटल में से ये इतनी केसेस है जिसमें वॉवेल साथ में है, तो दिस माइनस दिस, बचे हुए उसमें वॉवेल साथ में नहीं होंगे. यू आर गेटिंग योर आंसर एज 72, विच इज ऑप्शन नंबर डी. So dear student, we have discussed everything about permutation and combination. We have solved many practice examples without options, and thereafter a series of 25 questions with the help of options. So this is it from my side. There are 20 questions which are there for your assignment. Make sure before attending the session of probability, you should go through all the concepts of permutation combination and make sure you must have solved the 20 questions that are there in your study material of permutation and combination. Thank you very much. This is it from my side about permutation and combination.